हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट. स्टे होम, स्टे सेफ. सो आज मेरे साथ हैं दीपक भाई. सो विल बी टॉकिंग ऑन बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है. आपने टाइटल देख के तो जान ही लिया होगा. इट्स एन अमेजिंग टॉपिक, लव. सो लव कैन बी एनीथिंग. लव कैन बी इन्फैक्चुएशन को भी हम लव कह सकते हैं. ऑब्सेशन किसी चीज से, उसको भी लव कह सकते हैं. बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लव्स रहते हैं उस पर थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे. साथ में दीपक भाई हैं. और बताइए दीपक भाई, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया बढ़िया दिगंबर भाई, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ? बहुत बहुत अमेजिंग. चीयर्स टू वेंडीज. वैंडी तो पहली बार लव एलकेजी यूकेजी? नहीं नहीं ਇੰਨੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ उम्र से नहीं लव. इतनी छोटी उम्र में कभी ਇੰਨੀ love? छोटी उम्र तो पता ही नहीं होता लव की. नहीं, लव तो मैं वही कहा ना, लव की डेफिनेशन चेंज होती रहती है हाँ टाइम टू टाइम. जो पहले अगर कोई अट्रैक्शन है उसको हम लव कह दिया करते थे. हाँ तो मेरा तो टीचर के साथ था एक हाँ अट्रैक्शन उस समय का. बट आपका पहली बार जो थोड़ा एक होता है ना कि डिफरेंट सी फीलिंग. ਹਾਂ ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਸੀਗਾ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, अच्छा. ਤੇ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ. ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. हाँ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. अच्छा. ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਮੈਂ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट. ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਹਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਘਰ ਆ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਘਰ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ. मंजे मतलब? मतलब जो चारपाई नहीं होती, अच्छा. हाँ चलो. हाँ, उस पे बैठी थी उसके घर के सामने. तो मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी, नीले नीले रंग की, ब्लू कलर की. अच्छा. तो मैं वो साइकिल लेके आया, मैंने देखा लड़की बड़ी सुंदर है ना. हाँ. तो वो कह रहे लव. फोन आ गया. I'm really very sorry. Not an issue. तो ਸੌਰੀ. ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ. हम्म. ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਾਉਂਡ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. हम्म. ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਲਾਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾ ਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਈ. अच्छा. ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ. हम्म. ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਈ. ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. अच्छा. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ. हम्म. ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ. हम्म. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਰੀਟ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, हम्म. ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਨੀ 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 ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. हम्म. ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ. 5th क्लास में? ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, अच्छा. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ. ओके. ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਪਾਪਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਸਿਸਟਰ. हाँ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਭਾਬੀ. अच्छा. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਖੇਡਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ. ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀਗੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. हम्म. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਖੇਡਣ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ. ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ. ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਣੇ. ਮੈਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ. अच्छा, समझ गया मैं. ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. हम्म. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ. हाँ. ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜੰਜੀਰ ਛੂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ओ, उसको देहरादून में वो बोलते थे लॉकर चेन, कुछ टाइप का गेम होता हाँ था हाँ चेन कि पकड़ लिया तो उसके साथ भी भागना हाँ है. हाँ उसके बाकियों को पकड़ना है. हाँ. तो जब मैं होता था तो कई बार ना मेरा भाई भी खेलने आ जाता था वहाँ पे. अच्छा. तो थोड़ी तो शर्म रहती है ना. हाँ. तो हमारी जब अच्छी बॉन्डिंग होने लगी तो खेलने लगे ना सारे, तो वो खेलते थे तो बाकी लड़के भी आ जाते थे. जब उसकी पहले टर्न आ जाता ना, वो
करते थे कि कौन पहले किसको पकड़ेगी वो पहले, सबसे पहले किसकी आएगी टैब जो पकड़ेगा बाकी को। हाँ। तो जब भी उसकी आती तो सबसे पहले मुझे पकड़ती थी कि मैं किसी बाकी लड़के को पकड़ना ना पड़े। हाँ, समझ गया। तो मैं शर्माता था तब, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी वहाँ पे होता था। तो मैं उसको पकड़ता नहीं था कि मैं तेरे को नहीं पकड़ूंगा, ऐसे ही भागते हैं, ऐसे ही भाग के किसी को पकड़ेंगे। अच्छा। तो ऐसी छोटी मोटी खेल खेलते रहे। फिर वो जब भी आती थी ना, वो किसी और शहर में रहती थी, तो जब भी आती तो सबसे पहले मेरे घर पे आती थी। 5th क्लास की बात है। हाँ, जो पहली बार जिस लड़की ने थोड़ा सा डिफरेंट फील किया, तो मेरे साथ जो पहला था वो था 2nd क्लास में। वो तो मैं अभी तक फील कर रहा हूँ, मतलब अच्छा, वो क्योंकि मैं कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं जब पहली बार था कुछ डिफरेंट सा फील हुआ। तो मुझे फील हुआ, पता नहीं लोग झूठ मानेंगे सच मानेंगे क्या है, वो मुझे हुआ था 1st क्लास में। ना बिल्कुल रियल है। और मैं उस लड़की का वैसे नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा। तो हम साथ में बैठते थे, वो मेरे को कहती थी दिगंबर आज मेरे साथ बैठ जाएगा, इस तरीके से मेरे को कहती थी। तो मुझे तो अच्छा लगता था बैठना उसके साथ ऑब्वियसली। तो 2nd हुई, 3rd हुई और मुझे बड़ी प्यारी सी लगने लगी। तो 6th के बाद तो मैंने स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद डिफरेंट लड़की। पर लेकिन वो जो पहली लड़की थी, आई मीन जिसने थोड़ा सा अट्रैक्शन मेरे अंदर लाया, थोड़ा सा डिफरेंट फील हुआ किसी लड़की को लेके, वो पहली थी। अच्छा। तो वही है। उसके बाद तो जब मैं डिफरेंट दूसरे स्कूल में गया, तो ये तो 5th तक का फेज रहता है, जो थोड़ा 5th 6th से पहला फेज है, जिसमें हमारे दिमाग में कुछ रहता नहीं है चीजें। फिर बड़ी चीजें अपने दिमाग में आती हैं, हम बड़ा पढ़ते हैं, कुछ और चीज देखते हैं। पर जो 9th 11th 12th उस समय के अराउंड में कोई लड़की, उस समय लव की डेफिनेशन मेरे को लगता है चेंज हो जाती है। बिल्कुल चेंज होती है। पहले वाला जो लव होता है ना, वो सिर्फ होता है कि ये बंदा आपको मिल जाए, कि बस आपको सब कुछ मिल गया। कोई माइंड में कुछ नहीं होता कि बस इसी के साथ टाइम स्पेंड करना है। कि उसकी छोटी छोटी खुशियां, बस वो छोटी छोटी बातों में ना खुशियां मिलने लग जाती हैं। तो वह क्या हुआ, वो 6th क्लास में ना वो लास्ट बार आई एक बार। तो उसने एक बार मेरे लिए लड़ाई भी की थी किसी साथ। अच्छा। बड़े लड़के के साथ। ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो 6th क्लास में चली गई, उसके बाद हम मिले नहीं। ठीक है। तो 8th क्लास में था मैं, 2-3 साल के बाद वो वापस आई, क्योंकि उस समय फोन नहीं होते थे, कुछ भी नहीं था, फेसबुक कुछ भी नहीं चलाते थे। तो कोई जरिया नहीं था उसको ढूंढने का ना। तो वो 8th क्लास में ना एक बार मैं अपनी दुकान पे शॉप पे खड़ा था। तो मैं कहीं जाने पे जिद कर रहा था। मेरे पापा बोले नहीं तू नहीं जाएगा। मैं रोने लगा कि मैं जाना है। वो कहना नहीं तू नहीं जाएगा। तो मेरा बड़ा भाई चला गया, तो मैं शॉप पे था, मैं रो रहा था बैठा। तो मैंने एक ना गाड़ी वहाँ पे आके पार्क होते देखी। तो जब मैं गाड़ी पार्क होते देखी, उसमें से वो लड़की निकली। अच्छा। वो 2-3 साल बाद आई। तो मैंने देखा ये तो वही लड़की है, मैंने पहचान लिया। तो मेरे रोंगटे से खड़े हो गए उसको देख के। हाँ, हो जाते हैं। तो वो जब ना वो सीधा घर चली गई अपने। वो उस समय वो कहीं बाहर शिफ्ट हो गई थी, मतलब आउट ऑफ कंट्री। वो वहाँ पे मूव हो गए थे। अच्छा। तो वो जब आई तो मैंने जल्दी से शॉप से निकला, तो मैं अपने वही फ्रेंड के घर चला गया। तो उसको बोला वो लड़की आई हुई है ना, ऐसे ऐसे करके जा तो उससे बात कर। अच्छा। तो मैं 3-4 घंटे उसी के घर पे बैठा रहा कि जा तो उससे बात करके जा। कि या वो जब भी, मुझे तो लगा वो रहने आई होगी ना छुट्टियों पे, पर वो उसी दिन के लिए आई थी। तो वो उसको भेजा कि वो बात करने गया उससे, हाय हेलो है ना, कि मैं वो कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, नकार दिया अपना सिरे से। उसने नकार दिया, क्योंकि वो वहाँ पे मैंने सोचा वो यूएसए पर इंग्लैंड में शिफ्ट हो गई थी, वो हो गए थे। तो मैंने उससे बात की, तो वो कहने नहीं मेरे को याद नहीं है, वो क्यों खेलते होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो मेरे पास आया, वो कह रहा वो तो उसे तो कुछ याद नहीं है। अच्छा। तो मैं कहा नहीं यार, फिर भी मैं माना नहीं, मैं कहा नहीं यार उसको मैं मिल के जाऊँगा ना। वो जब निकलेगी तो एक बार उससे मिलूंगा। तो वो मैंने 3-4 घंटे वेट किया, वो आई नहीं। तो मैं जब घर पे गया तो वापस मुझे लगा तो वो शाम को रहेगी, कि मैं शाम को आऊँगा फिर दोबारा। तो जब मैं शाम को वापस गया, उससे पूछा, वो कहता वो तो चली गई। तो उसके बाद हुआ 3-4 साल के बाद उससे हुआ मेरा फेसबुक पे ना किसी तरह उसका कांटेक्ट मिल गया। तो मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की कि ये मैं ऐसे हम खेलते थे ऐसे। उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तेरे को जानती नहीं हूँ, सॉरी। तब मैं 11 साल की थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा। तो मैं भी तो उस समय 10 साल का ही था ना, तो मुझे तो सब कुछ याद है। ये तो है। उसने बोला मेरे को कुछ भी याद नहीं है, सॉरी, मेरे को तंग मत कर। अच्छा। मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगी। मैंने फिर भी उसको मैसेज किया कि नहीं एक बार सोच के तो देखा, मैं इतना खेलते थे। तो उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो तब मैंने सोच रहा था कि मैं कनाडा जाऊँगा। अच्छा। या अमेरिका जाऊँगा, एक बार उससे मिलूंगा जरूर।
तो ना मैंने ना एक बार मूवी देखी थी, उसमें ना वो लड़का ना उसके घर में चला जाता है पर उनको बताता नहीं कि भाई मैं तुझे प्यार करता हूँ। अच्छा, दोबारा प्यार जगाओगे उसके दिल में। हाँ कि मैं उसको बताऊंगा नहीं कि मैं वो हूँ। मैं बड़ा कुछ सोचता था। वही टिपिकल बॉलीवुड मूवी। पर मेरे साथ जो हुआ था, जो मैं जब सेकंड स्टेज आ जाती है लाइफ की, जिस समय आप बहुत कुछ अपनी बॉडी को लेकर एक्सपीरियंस करते हो, बहुत कुछ अपने माइंड को लेकर एक्सपीरियंस करते हो, तब मेरे को एक लड़की पसंद आई। वो थी, मैं था 10th में, वो भी 10th में ही थी। मेरा एक बड़ा खास फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड थी वो एक समय पे। अच्छा। तो वो अगर देख रहा होगा वैसे तो अच्छा है, बोलेगा। नहीं, उसे पता है। तो मुझे याद आया, मुझे एक्चुअली डेट भी याद है जब मैं उसको प्रपोज किया था। वो थी February 7th 2012। 10वीं के थे हम, एक पेपर से हो रहा था हमारा, पता नहीं प्री बोर्ड कुछ ऐसा चल रहा था उस समय। वो देकर हम वापस जा रहे थे घर, और उस समय ना हम दोनों की लड़ाई चल रही थी थोड़ी अच्छा। थोड़ी बहुत। मैंने कहा यही सही मौका है कि इसी समय अपनी एंट्री मारो। हाँ सही बात है। मैंने बोला क्या बोलते हैं कि आई लाइक यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड। उसने मना कर दिया, उसने नहीं। बट वो पहली बार मुझे थोड़ा झटका सा लगा। उसके बाद 2-3 दिन, पूरे 2 महीने के लिए जो अपनी गानों की प्लेलिस्ट होती है वो भी चेंज हो जाती है। हाँ। तो एक गाना बहुत मतलब बहुत ही फेमस गाना, पता नहीं बट मेरे को बड़ा पसंद है, कहीं तो होगी वो। मुझे तो मुझे वो धक्का टाइप का लगा मुझे उस समय, 1-2 महीने जब वो उसके बाद जो हुआ ना, जब मुझे ब्लॉक किया तो मैं 2 गाने सुनता था। एक बार तो जब वो 5th के बाद मुझे छोड़ के, कि वो हिमेश शर्मा का गाना तुझे भूले जाना मन की नहीं। हिमेश का गाना कैसे सुन लिया आपने? तू याद ना आए, ऐसा कोई नहीं, कोई गाना होता है ना जो उससे लिंक हो जाता है। हाँ। वो गाना था, वो मैंने सुना। और उसके बाद जब उसने मेरे को ब्लॉक किया तो उसके बाद मैंने वो गाना सुना, वो दिव्य मकसूसपुरी का है। अच्छा। एक बार है उठे जाना वो जेड़े मुल्क वे आई है। अच्छा। तो मैं वो सीधा कि बस एक बार जाना ही जाना, एक बार तो उन्हें फेस करना ही है कि हाँ कि तू इतनी जल्दी गैप हो लगी है ना। तो अमेरिका में है तो फिर तो मिल ही जा ही सकते हैं। अमेरिका का वीजा लगना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ अमेरिका बहुत बड़ा है ना, तो पहले पता करने का ना कहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे है। हाँ बिल्कुल। तो अगर उसके बाद चेंज होता है ना, जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो आपको काफी लोग मिलने लग जाते हैं। फिर कोई दूसरी लड़कियां नहीं पसंद आई टाइम टू टाइम की, सिर्फ वही टाइम तो फिर तो वो चेंज हो जाता है ना, जब क्योंकि उसने फेसबुक पे कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, लिंक नहीं था। तो वो जब वो बंदा आपसे दूर हो जाता है ना थोड़ा टाइम के लिए, अगर आपका प्यार सच्चा हो तो आप तो नहीं होते। तो मेरे को लगता है मेरा प्यार सच्चा नहीं था एक टाइम पे। अच्छा। क्योंकि अगर मेरा प्यार सच्चा होता तो 10 से 11वीं साल की उम्र में कैसे आप प्यार मान गए उसे? प्यार नहीं यार, वो फीलिंग ही अलग होती है। हाँ वही मैं समझ सकता हूँ, मैं भी उस फीलिंग के थ्रू गया हूँ कि आपको यही चाहिए बस, आपको और नहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना। उस मोमेंट के लिए तो मुझे भी वही चाहिए थी, जो लड़की थी जो 2nd-3rd क्लास तो में। उसके बाद में तो चेंज हो जाता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं, आप 11वीं 12वीं में आपकी प्रेफरेंस चेंज होती है। प्रेफरेंस हाँ चेंज होती जाती है वो तो। तो मतलब स्कूल के एंड डेज में कोई पसंद नहीं आई? स्कूल में तो एक लड़की, हमारी क्लास में एक लड़की होती थी, वो सभी लड़कों की क्रश थी। मतलब वो इतनी सुंदर भी नहीं थी, ठीक थी, कि सभी लड़कों का क्रश था। मतलब क्लास में वो सबसे सुंदर थी। अच्छा, बोलने का ढंग बढ़िया था उसका? हाँ बोलने का ढंग तो ठीक था, वो शर्मीली बहुत थी। अच्छा। बहुत ज्यादा शर्मीली थी, मतलब थोड़ी पढ़ाई में भी अच्छी थी। तो होता है कई लड़कों को, हाँ भी ये लड़की अच्छी है, सभी उसी को मतलब चाहते थे कि हाँ ये इससे हो जाए, इससे हो जाए। पर हमारा लेवल नहीं था ना उतना सा। 10वीं में तो आपको पता, 9th में ये तो है डेफिनेटली नहीं। अभी मैं अपनी पुरानी फोटो देखता हूँ, क्या था यार। हाँ मैंने भी देखी है फोटो, मतलब मैं भी अगर दिखाऊंगा अपनी कोई 10वीं 11वीं की फोटो तो लुक, मतलब अगर मैं लड़की हूँ मैं अपने आप को रिजेक्ट कर दूँ ऑब्वियसली। हाँ तो बट फिर एक स्कूलिंग खत्म हुई, फिर मेरा ना मैंने ड्रॉप किया हुआ था, मैं बंसल क्लासेस गया हुआ था। ओके। तो वहाँ पे मुझे एक लड़की पसंद आई। तो उसका नाम, जो बंसल क्लासेस के बाई चांस कोई देख लेगा, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने पॉडकास्टिंग शुरू कर रखी है, बट इन फ्यूचर कभी वो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो लड़की कौन थी। अच्छा। वो मुझे बड़ी पसंद थी, वो बड़ी ब्यूटीफुल, बहुत ही सब कुछ अच्छा था उसका, समझने की पावर, पढ़ने का ढंग। बट वो तो चलो ठीक है, 1 साल का कोर्स है, उसमें वो सब कुछ हट गया। पर फिर जब कॉलेज जाते हो, कॉलेज में एक्सपीरियंस करते ऐसे हो, तो आप किसी भी जगह पे जाते हो ना, तो आपको कोई ना कोई लड़की पसंद आ ही जाती है। पर एक होती है ना वो दिल से फीलिंग आती है, वो मेरे को नहीं यार आई। ये लड़की मेरे को मिल जाए तो बस मेरी लाइफ जो है मैं इसके साथ काटने को तैयार हूँ। तो वो लड़की थी वो ना, कि हाँ भी वो दिल के बारे में जो, उसके बाद तो जो भी किसी के साथ सबकी गर्लफ्रेंड्स होती है ना, कि वो फीलिंग नहीं आई मेरे को। सबकी नहीं होती गर्लफ्रेंड। कोई ना कोई तो होती है, आप कभी ना कभी तो रही होगी ना, कोई ना कोई तो। वो डायलॉग याद आ गया मुझे, मैं हूं ना का। एक आपने मैं हूं ना मूवी देखी है? उसमें बोलता नहीं है लक्ष्मण कि यार माँ तो सभी की होती है, तो जैसे राम कहता है सबकी माँ नहीं होती लक्ष्मण। तो वो इतने डीपली नहीं जाते। तो मुझे याद है।
बट जब मैं कॉलेज टाइम में था अपना 3rd ईयर में था, तब कि पहले 2 साल पता नहीं कि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई कॉलेज में। तो फिर 3rd ईयर की मेरे को अपना पूरा याद है, 3rd ईयर था, इलेक्शन चल रहे थे, 2 लड़कियां बैठी हुई थी सामने। मैं क्या, मैंने इलेक्शन का वो करने जाऊंगा कि मैं इसको वोट करना, और इन दोनों में से जो भी मुझे लाइन दे देगी, जो भाव देगी, हमारा तो वही हिसाब है कि जो दे देगी हम उसी के पीछे चल लेंगे। सही बात है। और उनमें से एक ने दे दिया, और उससे बातें करना, घंटों बातें करना। मैं बातें कर नहीं सकता अपनी फोन पे, बट मैं उससे बातें करे जा रहा हूँ, उससे छोटी छोटी चीजें शेयर कर रहा हूँ। उससे आप अपनी प्लेलिस्ट शेयर करते हो जब गानों की, सही बात। पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं तो आप करते। चैटिंग में ना उसको गाने भेजते हो। हाँ, कोई भी सब भेजते हैं। डायलॉग मारते हैं, हाँ। उस पे कोई लाइन छोड़नी हो तो वो गाने में लाइन छोड़ते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि सब लोग भी ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं, बट मैंने किया। सभी तो उधर से वो मेरे को पूछती थी इसका लाइन का मतलब क्या है, थोड़ा सा हिंदी गाने के वो भेज देता था मैं। हाँ, उसकी तारीफ करने के लिए वो लाइन भेज देते हैं। हाँ, तो उसे समझाना कि इस तरीके से इसका मतलब ये है, तो ये चलता गया। पर फिर ऑब्वियसली एम तो आना ही था उसका, उसे पता था कि मैंने बाहर जाना है उसके बाद। तो उसने कहा कि तुमने बाहर जाना है, मैंने कहा हाँ, पढ़ने के लिए। उससे पहले मैं उसका डेट पे भी गया था एक बार, और डेट तो इतनी ब्लंडर गई थी मेरे जिंदगी में, मेरी पहली डेट थी। पर जिसको जो पहली डेट पे जाता है उसे पता थोड़ी होता है कि क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, वो तो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, तो है ना। तो उससे में आप काफी कुछ सीखते हो। मेन चीज जो मैं सीखा था उस लव एक्सपीरियंस, उस लड़की की वजह से, एक होता है कि अपने पे फोकस करना। मतलब पहले तो यार इंसान क्या करता था, अपने को बस तरीका नहीं था कोई कपड़े पहनने का। सही बात है, जो आया वो आगे पहन लिया। जीन्स नीचे से बेल बॉटम बनी पड़ रही है ना। तो वही सब था कि आप अपने पे किस तरह से फोकस करते हो, किस तरह से आप अपना ड्रेसिंग सेंस रखते हो, किस तरीके से अपने आप को लेके चलते हो। कपड़ों का पहनने का या शूज का मेरे को शुरू से ही शौक था। हाँ। वो मेरा इतना बैड नहीं गया कभी। क्योंकि मेरे को ड्रेसिंग का शुरू से ही शौक था कि मैं अच्छा दिखूं। मेरे को तो कभी भी नहीं था। मेरी अगर ये बात है 2017 से पहले की, तो मैं कुछ भी पहन जाया करता था। एक होता था ना, आप कलर कॉन्ट्रास्ट करते हो अपने कपड़ों में कि यार ये चीज सूट करना चाहिए। मैं कभी दिया ही नहीं उस पर ध्यान। मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट मिला था, +1 में था, मेरी मैथ की टीचर ने कहा कि तेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। कि बाकी लड़कों में से जो भी है स्टूडेंट है उसके, तेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, कि तेरे को पता है कि कौन सा जीन्स किसके साथ, शर्ट के साथ पहननी है, ये कैसे करना है। हाँ नहीं, ये बहुत बढ़िया। ये तो क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी, किस तरीके के जूते पहने, जो एक जूते वही पहने जा रहे हैं, उसी को लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद जब हो गया था, एक तरीके से टूट गया था, मैं जिम से आया था उस समय, और उसने फिर बोला था कि अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। और मैं जिम से आके मैं शावर ले रहा था, और मेरे वैसे ही आंसू निकल गए। तो वो पहली बार मतलब किसी लड़की के लिए मेरे आंसू निकले, पर वो भी रियल नहीं था, क्योंकि वो अगर रियल होता तो चलता, वो रियल होता तो मैं फील करता करीबन 1 महीने 2 महीने बाद, पर 10 दिन बाद मैं भूल गया। ऐसे ही होता है ना। तो वही आज तक मुझे वैसा एक्सपीरियंस नहीं हो पाया, मतलब ना, जिसके लिए आप जैसा आप देखते हो ना मूवीज में कि वो बंदे पागल हो जाते हैं किसी और के लिए, मुझे भी वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक कि दिल रोए हाँ कि ये यही चाहिए और किसी की तरफ देखना नहीं है। और हम तो साले इधर का छोड़ा, वो बड़ी बस सुंदर है भाई। तो हो जाता है। वही है बस मेन पता है। और किस तरीके से कि मैं तो बात भी नहीं कर सकता किसी लड़की से, मतलब ना चैटिंग करना, तो एक जो ऑर्गेनिक बातें होंगी वो अपने आप ही होगी, ऐसा मेरा एक फ्रेंड मुझे कहता है। तो मैं भी उसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे से भी नहीं, मेरी मतलब मैं जैसे मर्जी हूँ, मेरे से फेस टू फेस नहीं लड़की से बात होती। अगर एक बार उसके साथ कांटेक्ट हो गया ना, तो बहुत सी लड़कियों ने मेरे को बोला ना, उनकी फ्रेंड्स भी होती हैं या कुछ है जो चैटिंग करते हैं, कि जैसा तू शक्ल से दिखता है वैसे तो बड़ा है हरामी। तो उससे हरामी है। अच्छा। कि क्योंकि जो मेरा ना फेस ऐसा है कि मैं बड़ा सा साउथ सा लगता हूँ, बड़ा बोला सा। अच्छा। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, कभी भी लड़कियां मिलती हैं ना, जो फ्रेंड्स मिलती हैं, फर्स्ट होता है तो पहले यार लड़का बड़ा साउथ है ना। मुझे हर बार बोला, हाँ किसी ने बोला, इवन कि टीचर्स हों या कोई भी क्लासमेट्स हों, फ्रेंड्स हों, कि तू ये लड़का बड़ा साउथ है, लड़का बड़ा बोला है ना। तो उसके बाद जब चैटिंग शुरू होती है, तो जैसा तू दिखता है वैसा तो है नहीं। हाँ, ये तो बड़ी चीज है। ये तो रहता ही है। बट मेन चीज, क्योंकि हर एक आउट ऑफ लव एक्सपीरियंस को अगर सोचे, मेरे को इतने लव मेरे को कभी वैसा नहीं हो पाया जब ना किसी के 2-2 3-3 साल के होते हैं। वो 2-2 3-3 साल के थ्रू जब जाते हैं, उसके बाद जब ब्रेकअप होता है, किस तरीके से वो
कि बहुत चीजें फिर आप ना टच याद करते हो लड़कियों का, वो वो स्मेल, टच, हाँ बड़े सारी बात काफी मोमेंट्स होते हैं आपके, काफी इमोशंस जुड़ जाते हैं। वो तो मेरे को भी नहीं हुआ अभी तक, आज तक। तो फिर हम डिस्कस किस चीज पे कर रहे हैं, लव एक्सपीरियंस। तो लव एक्सपीरियंस वही छोटे छोटे जो अपने किस्से हुए हैं, हाँ तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ना जब मैंने +1 +2 में तो ऐसे ही गुजार दिया ना, खेल कूद में, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, लड़कियों देख लिया या कुछ थोड़ा बहुत कर लिया ना, जो भी था कि जो भी लड़की साथ में पढ़ती है उनके साथ चिल कर लिया, वो वैसे वाला प्यार कुछ नहीं था ना। तो मैं फर्स्ट ईयर में गया, तो फर्स्ट ईयर में मेरा फ्रेंड था राहुल, वो बड़ा मतलब था, हैंडसम था लड़का, तो उसको बड़ी लड़कियां बहुत देती थी, तो उसके साथ में होता था, मेरे को कोई भाव नहीं देती थी। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही निकल गया ना। अच्छा। तो सेकंड ईयर में मैंने कॉलेज चेंज किया, तो वहाँ पे थे लड़के सारे मतलब गाँव के थे, मतलब पिंड दे, ते ਅਸੀਂ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤੇ 80 ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 80 मतलब 12 लड़के और 80 लड़कियां। वाह। तो मैं गया वहाँ पे, तो मेरे पास बाइक थी अपाचे येलो कलर की। अच्छा। तो वो बड़ी कम होती थी वहाँ पे, छोटा सा टाउन है, 3 या 4 बाइक थी वहाँ पे जब हमने ली थी, हमारी थर्ड थी। तो वो बाइक थी, तो मैं कॉलेज में गया, तो वहाँ पे ना लड़कियाँ ने, पहले दिन गया मैं, तो थोड़ा कहते हैं ना कि पता लग जाता है कि वो सभी लड़कियाँ मतलब कह रही थी कि हाँ अभी नए लड़के आए हैं ना। तो धीरे धीरे ऐसे होते 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 ना लड़कियाँ देखने लगी। तो हमारी होती है ना, जो होती है ह्यूमन नेचर, जो अपनी क्लास की लड़कियाँ होती हैं वो किसी को पसंद नहीं आती, किसी को भी नहीं, मुझे भी नहीं आती थी। तो जो दूसरी क्लास की लड़कियाँ होती हैं, जूनियर और सीनियर, हाँ वो सबको पसंद आती है, पता नहीं क्यों। उन क्लास वालों को उनकी लड़कियाँ नहीं अच्छी लगती। तो ऐसे ही करते करते ना एक लड़की थी वहाँ पे, उसने ना सभी, पहले इंग्लिश की क्लास चल रही, तो सभी कहते हैं ना कि अपनी इंटरव्यू दो, बताओ अपने बारे में, वो करो, क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन दो ना। तो सभी बता रहे अपने बारे में। हम तो वैसे ही इंग्लिश तो वैसे ही कम आती थी तभी तक, क्योंकि इतना था ही इंटेलिजेंट थे नहीं। तो सभी अपनी दे रहे हैं ना ऐसे ऐसे, माय नेम इज दीपक, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये डन करके आया हूँ, तो यहाँ पे ये करने आया हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई, उसने सारी अपनी इंग्लिश में दी, कि जो हम कहते हैं जो हम आलस में सीखते हैं कि ऐसे अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, तो उसने वैसे दी। तो मैंने उसके पीठ से देखा, मैंने उसको फेस नहीं किया। अच्छा। तो वो कहते हैं ना, वो एक दिल से अंदर से फिर से आवाज आ गई, अच्छा यार ये लड़की से बात करनी है। अच्छा, करी आपने? तो मैंने फेस टू फेस नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझसे वो होती नहीं, फेस टू फेस नहीं। तो मैंने किसी ना किसी तरह उसका फेसबुक कॉन्टेक्ट ले लिया, तो हमारी फेसबुक पे बातें होने लग गई। तो वो उसने जब मैंने उसको बताया कि मैं वो हूँ, वो कहती हाँ ठीक है मैंने पहचान लिया, वो बड़ा भोला सा लड़का है, ऐसा उसा ना, सादा सा लड़का। मैं क्या यार, तो नेक्स्ट डे उसने जब देखा तो उसने मेरे कहा कि नहीं मैं भूल गई, आप तो बड़े फ्रेश से लड़के हो, फ्रेश हो मतलब, हाँ फ्रेशर्स, हाँ मतलब फ्रेश मतलब लाइक जो नए आए हैं, नहीं सादे नहीं हो, कि मतलब जो सिंपल दिखते हो वो नहीं, मतलब थोड़ा सा अच्छा अच्छे दिखने वाले हो, उस टाइप में बोला उसने। ओ अच्छा ये, हाँ पंजाब में बोलते होंगे ऐसे। तो उसने बोला कि तुम तो बड़े फ्रेश से हो। तो ऐसी बातचीत चलती गई। तो बस मेरे को लगा था कि ये मेरा फर्स्ट लव है, हाँ कि वो तो मैं बच्चा था, मैं उसको भूल गया कि मैं तो वो बच्चा था, वो ऐसे ही हो गया होगा, तो मैं इसके पीछे लग गया। उसको पीछे लगते मैंने ना इतनी लड़कियों की रिक्वेस्ट, इवन कि मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी लड़कियों की, मैं एक्सेप्ट नहीं करता था वो कि नहीं यार, कि मतलब धोखा नहीं हो जाता था कि नहीं यार इससे धोखा ना हो जाए। मैं तो गिने चुने बहुत ही 2 या 3 ही होंगे जिनको रिक्वेस्ट आई होंगी, मुझे वैसे तो मेरे को आती नहीं थी। तो बस वैसे ही थोड़ा नाम होने लग गया वहाँ पे कि एक लड़का है ना दीपक, कि BSc सेकंड ईयर में कोई लड़का है ना, कि ऐसे थोड़ी हो जाता है ना कि जब लड़के कम हो तो गिने चुने रहते हो, तो थोड़ा सा हो जाता है ना। तो वो कहते कि हाँ मुझे नए क्लास में लड़का है ना एक दीपक, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट करने बंद कर दी ना, भाव खाने के लग गया ना, कि थोड़ा नाम होने लग गया। ये तो है। तो लाइब्रेरी में बैठते थे लड़कियां देखने लग जाती थी, तो मैं भाव नहीं देता था। तो उसके अभी मैं फोटोज देख रहा हूँ अपनी सेकंड ईयर की, कि क्या था यार, लड़के क्या देख रही थी तुम्हें लड़कियों ने क्या देखा इसमें ना। तो ऐसे होने लग गया, पर उस लड़की की वजह से मैंने काफी लड़कियों को रिजेक्ट की, वो बाद में बेवफा निकल गई। हाँ तो उसके बाद मैंने सीख लिया। तो एक ना ब्रेन सिंगर आता है YouTube पे, छोटा ब्रेन सिंगर, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ये सुन, जो भी सिंगल है वो जरा छोटा ब्रेन सिंगर जरूर सुने। तो उसने बोला कि भिखारी से शिकारी कैसे बनते हैं
उसके बाद मैंने सुना, तो उसके बाद बंदे का ना, जो एक बार सुनेगा ना सिंगल है, जो एक लड़की के पीछे ही पड़ा है कि मेरे को यही चाहिए, एक बार जरूर सुने। हाँ, उसमें मेरी एक मैं भी सुन उसका रहा था, बंदे का एटीट्यूड ही चेंज कर देता है। मैंने उसकी एक लाइन भी सुनी थी जिसमें वो कहता था कि यार भीख भी उसी को मिलती है जिसके कटोरे में 2-3 सिक्के हों। हाँ, सही बात है उसकी। ये है कि हम सोचते हैं ना कि हम यार लड़की, हम सोचेंगे हम सिंगल हैं, किसी भी लड़की को बताएंगे हम सिंगल हैं यार, वो हमसे पट जाएगी ना। कभी भी देखना भाई, 1-2 लड़की के साथ आप फिर रहे हो, घूम रहे हो ना, तीसरी लड़की आपको पसंद करेगी, यार ये लड़कियां लेके घूम रहे हैं, इसमें कोई बात होगी। अगर आप सिंगल घूम रहे हो, वो भाई मिलेगी क्या, एक इंटरेस्ट नहीं लेगी वो आपकी, वो भीख वाली, वो सही है बात। हाँ, ये तो है ही। मैंने भी नोटिस करी है। बाकी मैंने भी सुनी रहा था छोटा ब्रेन सिंगर, तो उसके बाद से देखते हैं कि आपने मेरी लाइफ में कुछ वैसे तो चेंज आया नहीं है, बट देखते हैं। एटीट्यूड लाना पड़ेगा, एटीट्यूड लाना पड़ेगा वैसा वाला। बट लव एक्सपीरियंस को लेके इतनी सी चीजें थी आपकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी। बाकी अगर जैसे थोड़ा बहुत अगर कोई और लव एक्सपीरियंस हुए जिंदगी में तो करेंगे उस पर डिस्कस, चर्चा। टिल देन छोटा ब्रेन सिंगर सुनो, घर पे हो आजकल, अपनी सारी रणनीतियां तैयार कर लो, क्योंकि जब खुलेगा तो बाहर ही जाओगे। तो इसलिए स्टे सेफ, स्टे होम। एक पॉडकास्ट अगला जो बन रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप जो भी लोग सुन रहे हो, जो ब्रैम्पटन वाले एरिया में कोई रह रहा है, उन्हें अगर करना हो कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर पॉडकास्ट, तो नीचे कमेंट जरूर डाल देना। कोई भी स्टोरी सामने आए, ये तो बस एक फन सा एक लिटिल पॉडकास्ट था। अगला कोई भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, एनी स्टोरी कुछ भी, किसी भी स्टोरी हो सकती है, कोई सीरियस, किसी भी चीज को लेके, खाली कोई डे फिक्स कर लेंगे, उस पे स्टोरी, उस पे पॉडकास्ट कर लेंगे। टिल देन अपना मजे से रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। बाकी सब्सक्राइब करना है करो, लाइक करना है ना करो, तुम्हारी मर्जी, बट कमेंट जरूर डालना कि यार इस एपिसोड पे कर सकते हो, इधर बेकार था, इधर सही था। एक्चुअली मेरा बाहर जाने का बड़ा मन है, बट बाहर अभी हो नहीं पा रहा पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड स्टफ। बट जैसे ही कुछ सब खुलेगा तो बाहर जाएंगे, बाहर की चीजें करेंगे। मेरे को तो आउटडोर वैसे ज्यादा पसंद है, बट अभी आजकल सिर्फ इंडोर चला रहे हैं थोड़ा। टिल देन मिलते हैं। थैंक यू दीपो भाई। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेंडीज फॉर प्रमोट।